Student, the Stark effect, the effect of static electric field on the spectrum of hydrogen and other atoms was studied by J. Stark. The splitting of spectral line in presence of electric field is called Stark effect. Applied field is along z-axis. Atom is placed in this electric field and atom will interact with the electric field. Under action of electric field, positive charge will go in one direction, in direction of electric field, and negative charges in direction opposite to direction of electric field. So charges are separated, therefore center of gravity of two charges separated, therefore electric dipole is formed. मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जर्व्ड स्टार्क इफेक्ट से पहले ये बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूजुअली एनकाउंटर्ड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻7 वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज कांस्टेंट. ये रेशियो कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू लिटिल d. अगर डिस्टेंस ज़्यादा इलेक्ट्रोड के बीच में तो वोल्टेज ज़्यादा, अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच वाला कम है तो वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड वो भी कम है. वोल्टेज के साथ वर्ड हमेशा अक्रॉस लगता है. 10⁵ वोल्ट के एसोसिएटेड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर. अगर डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में 0.1 सेंटीमीटर है तो वोल्टेज अप्लाइड इज 10⁴ वोल्ट. अगर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 मीटर है तो वोल्टेज अप्लाइड इज 10⁷ वोल्ट. So main features here, all hydrogen lines form symmetrical patterns, but pattern depends mainly on quantum number little n of the terms involved. The number of Stark lines and total width of pattern increase with small n. और आप ये जानते हैं बाल्मर सीरीज बिलोंग टू विजिबल रीजन, जिसमें 4 मेंबर की बात की थी, H alpha, H beta, H gamma, H delta. H alpha line which arises due to transition from 3 to 2. H beta is a transition from 4 to 2. H gamma is a transition from 5 to 2. H delta is a transition from 6 to 2. These members belong to Balmer series. H alpha is first member of Balmer series. H beta is second member of Balmer series, and so on and so forth. Line H beta shows a larger number of Stark components than H alpha. Similarly, number of components of H gamma line is greater than that of H beta line. Second feature is when observations are made perpendicular to field, yani for the transverse view, each line of some components are plane polarized with electric vector parallel to field, yani pi components, and each line of some components are polarized with electric vector perpendicular to field, yani sigma components. And when observations are made parallel to direction of electric field, yani longitudinal view, then only sigma components appear which are unpolarized and pi components are absent. तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल फीचर. और इसी प्रकार से द वेव नंबर शिफ्ट्स are integral multiple of a unit which is proportional to strength of electric field and is the same for all hydrogen lines. Delta gamma, which is symbol of interaction energy of hydrogen like atom or hydrogen atom in an electric field, capital vector F is given by delta gamma equal to capital A capital F plus B capital F square plus C capital F cube etc. Capital F here stands for intensity of electric field or strength of electric field. Coefficient A, B, C and so on so have been calculated classically as well as quantum mechanically. Delta gamma is symbol of change in term value in centimeter inverse of an atom in wave number. या डेल्टा गामा को टर्म शिफ्ट बोलते हैं, या शिफ्ट ऑफ फील्ड फ्री स्टेट टू स्टेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टार्क इफेक्ट, देयर आर 2 टाइप स्टार्क इफेक्ट. एक होता है फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट और एक होता है सेकंड ऑर्डर
स्टार्क इफेक्ट जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट यानी लीनियर स्टार्क इफेक्ट, डेल्टा गामा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ if interaction energy or term splitting is found to be proportional to first power of applied electric field, then Stark effect is called first order Stark effect. In first order Stark effect, the components lie symmetrically about field free position. For first order Stark effect, या लीनियर स्टार्क इफेक्ट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। द लोअर एनर्जी स्टेट्स ब्रैकेट में स्मॉल वैल्यू ऑफ लिटिल एन ऑफ हाइड्रोजन एटम शोज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। द टर्म शिफ्ट इज कैपिटल ए कैपिटल एफ because BF square CF cube are neglected as compared to AF in expression of delta gamma. Here capital A is coefficient which is 6.4 into 10⁻⁵, little n ब्रैकेट में little n2 minus little n1। इसको यहाँ सब्सिट्यूट किया तो ये डेल्टा गामा आ गया। स्मॉल n is usual total quantum number, small n1 small n2 new parabolic quantum number। allowed value of these quantum numbers are, स्मॉल n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। स्मॉल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई, लेकिन न्यू पैराबोलिक क्वांटम नंबर जो लिटिल n1 लिटिल n2 है, दे विल बिगिन फ्रॉम 0 एंड अप टू n-1। लास्ट वैल्यू ऑफ n1 n2 इज n-1। एंड एक और क्वांटम नंबर है दैट इज m⁴l विच इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m⁴l is equal to n minus n2 minus n1 minus 1 और m⁴l की वैल्यू है 0, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2 अप टू प्लस और माइनस n-1। अब है सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट विच इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। हियर डेल्टा गामा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा गामा इक्वल टू AF प्लस BF स्क्वायर। Second term, this is second term, this is first term. In second order Stark effect, second term will dominate first term. Consequently, delta gamma is proportional to F square. Therefore, term splitting is directly proportional to second power of external electric field. Then Stark effect is called second order Stark effect or quadratic Stark effect. If electric field strength increases above 10⁵ volt per centimeter, then displacement delta gamma is proportional to square of field strength, and in hydrogen it is known as second order Stark effect, and in other atoms other than hydrogen like it is known as quadratic Stark effect. Second order Stark effect results in unidirectional or unilateral displacement of each spectral line. This effect is found experimentally to shift different components टू द रेड और वॉयलेट एंड स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज के 4 मेंबर आप जानते हैं, और ये वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दीज यू नो। स्टार्क सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इज सीन फॉर H gamma H delta lines of hydrogen atom, then field is greater than 10⁵ volt per centimeter. But first order Stark effect is seen for H alpha H beta line of hydrogen atom, then field capital F is up to 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब सवाल यह कि क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट में ये स्केयर डिपेंडेंस ऑफ स्टार्क इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे समझें, उसको क्वालिटेटिव में समझा देता हूँ। व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हैं देन एटम विल बिकम इलेक्ट्रिकली पोलराइज, क्योंकि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, एटम न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें सेपरेट कर देगा, और जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो फिर EDM इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। Therefore, center of positive charge of system is shifted by some amount from center of negative charge,
in direction of electric field. Result of this action is generation of electric dipole moment, and this electric dipole moment is proportional to strength of electric field, and magnitude depends upon orientation of capital J with field direction. Now vector J, with J को बोलते हैं total angular momentum vector, precesses around electric field direction, and rate of precession depends upon strength of electric field. Precession rate increases with increasing electric field. So change in energy will be product of strength of this electric field and dipole moment. और अभी बताया dipole moment in turn is proportional to electric field strength. तो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट आगे किस पे निर्भर कर रहा है? खुद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में. तो देयरफॉर चेंज इन टर्म में क्या, चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इनटू फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दो बार आ गया. सो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ स्क्वायर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ. तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट में टर्म स्प्लिटिंग कैसे स्क्वायर ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करती है. वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट फॉर एच अल्फा लाइन. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक in the sense that magnetic interaction between L star and S star is strong and resultant is J star. The interaction of J star with electric field capital vector F is relatively weak. ये फिगर जो आप देख रहे हैं, दिस इज वेक्टर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये जे स्टार, इन दोनों का रिजल्टेंट एल स्टार और एस स्टार दोनों की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट, और जे स्टार की प्रिसेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल वेक्टर एफ के अबाउट. और यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्क स्प्लिटिंग इज लेस देन फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग. तो आपने इसमें ये ध्यान रखना कि इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड interaction energy between electron resultant angular momentum J star and electric field capital vector F is considerably less than the magnetic interaction energy between L star and S star. In other words, in a weak electric field, we have small stark splitting compared with the fine structure splitting. अब आप ये देखिए स्टूडेंट, सिमिलर टू केस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, the space quantization also takes place in an electric field, and vector L and vector S coupled to form vector J, which precesses around capital vector F with projection m suffix j h over 2 pi, where m suffix j takes values j comma j minus 1, j minus 2, etc. up to minus j. However, in contrast to Zeeman levels, the Stark levels plus m suffix j and minus m suffix j arising from a given unperturbed level have the same energy. The word same energy is important. ये ध्यान दें. m suffix j and minus m suffix j have the same energy. So, unlike case of magnetic field, the energy shift due to electric field for m suffix j and minus m suffix j is the same. ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ये एटम दिखा है, एटम न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम हैज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया अपनी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो नेगेटिव चार्जेस का सी जी यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्जेस के सी जी यहाँ पे आ गया। सी जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में लिटिल गैप इज देयर, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का आउटवर्ड नॉर्मल, और ये जे वेक्टर जो है दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब आप ये देखेंगे स्टूडेंट, इस फिगर में न्यूक्लियस जिस पे मैंने पॉजिटिवली चार्ज लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ एटम ड्यू टू एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान दें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्ट ऑन मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद वेक्टर जे, rather atom becomes electrically polarized on application of electric field. An electric dipole moment proportional to electric field results, and magnitude of electric dipole moment depends upon orientation of angular momentum vector j normal to plane of electron orbit to the electric field as shown in figure. Due to space quantization, angular momentum vector will have only specific values m suffix j along electric field direction. Because of the gyroscopic forces, there will be precession of vector j about the field direction, so that component m suffix j is constant. The stronger the electric field, more rapid is velocity of precession. Analogous to case of magnetic field, here also energy shift is given as product of electric dipole moment and electric field. But since dipole moment produced by electric field is independent of direction of orbital motion of electron, therefore energy shift depends only on magnitude of m suffix j. मैं फिर ये लाइन बोल दूं, since dipole moment produced by electric field is independent of direction of orbital motion of electron, so energy shift depends only on magnitude of m suffix j and is independent of its sign. और ये भी हम बताएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी लेवल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is j plus half when j is half integral, and number of components of energy level in an electric field is j plus 1 when j is integral. अब मुझे एच अल्फा लाइन के लिए वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट डिस्कस करना है। एच अल्फा लाइन फ्रॉम 3 to 2, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर n is 3, तो आप जानते हैं एल की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके n-1, तो 0 से लेके 2 स्पिन इलेक्ट्रॉन की हाफ है, तो एक L0 के एसोसिएटेड S, L इक्वल टू 1 के लिए S, L इक्वल टू 2 के लिए S। तो जब J की वैल्यू L प्लस S से L माइनस S, तो ये J हाफ आ गया। और ये एनर्जी स्टेट कैसे लिखते थे, मल्टीप्लिसिटी और नीचे J का वैल्यू, और एनर्जी स्टेट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से, और S हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा। L1 S हाफ है तो J की वैल्यू L प्लस S से लेके L माइनस S, 1 प्लस हाफ से लेके 1 माइनस हाफ, तो J इज हाफ कोमा 3/2, तो ये एनर्जी स्टेट। L इज 2 S इज हाफ, तो J इज 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ, यानी 3/2 5/2, तो ये एनर्जी स्टेट। N इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू 0 से n-1 यानी 0 1, और S तो हाफ है, L0 के लिए S हाफ, L1 के लिए S हाफ, तो L1 S हाफ है तो J इज हाफ 3/2, ये एनर्जी स्टेट। क्योंकि L1 है तो एनर्जी स्टेट P, L0 है तो एनर्जी स्टेट S, L2 है तो एनर्जी स्टेट D। तो आप ये देख रहे हैं इसमें, तो इसमें अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं।
स्टूडेंट ये स्टार्क इफेक्ट splitting of n equal to 3 and n equal to 2 level of hydrogen atom due to linear Stark effect. और यहाँ पे स्मॉल l जो है दैट इज़ नॉट ए गुड क्वांटम नंबर इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अभी मैंने आपको एच अल्फा लाइन बताई थी विच इज़ फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 2. n equal to 3 के ये लेवल्स, n equal to 2 के ये लेवल, ये n3 है, ये n3 है, ये n3, ये एनर्जी स्टेट 2d 5/2, 2d 3/2, d का डबलेट, 2p 3/2, 2p हाफ, p का डबलेट, 2s हाफ सिंगलेट. और जो p का डबलेट बताया था तो हायर जे हायर एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता था, लोअर जे लोअर एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता था. ऐसे ही d 5/2, d 3/2 में स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी में बताया था, हायर जे हायर एनर्जी, लोअर जे लोअर एनर्जी. इसी प्रकार से ये p का डबलेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n equal to 2 और ये s का सिंगलेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n equal to 2. ये आपस में कोइंसाइड क्योंकि j की वैल्यू सेम है, ये आपस में कोइंसाइड j की वैल्यू सेम है, ये आपस में कोइंसाइड j की वैल्यू सेम है, ये आइसोलेटेड है. इनकी आपस में शेयरिंग है, इनकी आपस में शेयरिंग है, इनकी आपस में शेयरिंग है. और जब हमने सोमरफेल्ड रिलेटिविटी करेक्शन को सुपर इम्पोज किया अलॉन्ग विद स्पिन ऑर्बिट करेक्शन एंड देन डिस्कस फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन, वी टोल्ड एच अल्फा लाइन कंसिस्ट ऑफ fine structure of H alpha line consists of 5 lines, 1 2 3 4 5. Selection rule बताए थे डेल्टा J इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1, डेल्टा L इक्वल टू प्लस माइनस 1, कॉमा से पहले डेल्टा J, कॉमा के बाद डेल्टा L, ये n इक्वल टू 3 और इनमें गैप था. इसके लिए जब मैंने सोल्व किया था डेल्टा गामा इसका और डेल्टा गामा इसका और उनमें गैप निकाला था तो 0.036 सेंटीमीटर इनवर्स. आप एच अल्फा के फाइन स्ट्रक्चर को रिवाइज करिए तो आपको ये गैप पता चल जाएंगे. 0.036 सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया, ये 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया, ये 0.364 सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया. फिर भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक ट्रांजिशन में बताया कि डेल्टा जे, इस ट्रांजिशन का ये डेल्टा जे है, ये डेल्टा एल, ये डेल्टा जे, ये डेल्टा एल एंड सो ऑन सो फोर्थ. सिलेक्शन रूल फॉर वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट बता दूं वही होते हैं जो जीमन इफेक्ट के थे. डेल्टा एम जी इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1, डेल्टा एम सफिक्स जे इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड टू पाई लाइन, वाइल डेल्टा एम जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 कॉरस्पॉन्ड टू सिग्मा लाइन. अब आप ये देखिए कि ये दो केस हैं, ये है विदाउट फील्ड और ये है विद फील्ड. विदाउट फील्ड यानी फील्ड फ्री लेवल, वो लेफ्ट साइड में फिगर देख रहे हैं, और जब मैंने फील्ड लगाया तो वो पैटर्न जो आप देख रहे हैं वो राइट साइड में. और आप देखें वेन एवर 2 और मोर लेवल with same n and same j but different L, their first order Stark effect predominates over the second order Stark effect. जहां जहां शेयरिंग है यहां पे इनमें फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट प्रिडोमिनेट करेगा, लेकिन जहां शेयरिंग नहीं है वहाँ सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट प्रिडोमिनेट करेगा. यहाँ पे सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, यहाँ सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है. एंड स्टूडेंट स्टेट विद सेम n and j fall together in लेफ्ट पार्ट. आप डायग्राम में देख रहे हैं
which show a large first order splitting यानी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग या शेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ पेयरिंग है, यहाँ पेयरिंग है, यहाँ अनपेयरिंग, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। जहाँ अनपेयर्ड है वहाँ सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, जहाँ पेयरिंग है वहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है। The reason why a first order Stark effect occurs in paired states. Why first order Stark effect does not occur in unpaired levels? इसका रीज़न मैं बता दूँ, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कहाँ पे क्यों है? जहाँ पे कोइंसाइडिंग है, पेयरिंग है, वहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्यों है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक्सप्लेन होगा। सो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन, a natural sharing of energy by the two states, the atom in either one of the shared states will possess a net electric moment. तो जहाँ पे शेयरिंग होगी वहाँ एटम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन जहाँ पे अनशेयर्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। So while in case of an unpaired level, there can be no appreciable electric moment, and hence there will be only a second order Stark effect when we talk about unpaired level. And due to space quantization, electric dipole moment interacts with electric field to give J plus 1/2 equally spaced levels when J is half integral. And quantum numbers for weak Stark effect are little n, little j, and m suffix j. L यहाँ पे not a good quantum number in presence of external electric field. मैं अभी आपको बता के हटाऊँ, nature of forces acting on electron are purely electrostatic. So energy of electron in an orbit n and l depends upon orbit plane with respect to electric field or distribution of charge on quantum mechanical model, and this energy does not depend on direction of rotation, yani clockwise or anti-clockwise. Therefore state with plus m suffix j and minus m suffix j correspond to same inclination of orbit plane or same charge distribution, and so have same energy change due to applied electric field. So for given n, l and j, each pair of state with plus minus mj have the same charge distribution. अब सवाल है, why the shared split and unshared does not split? आप ये देखो, जहाँ अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जहाँ पे शेयर्ड है वो स्प्लिट है, जो अनशेयर्ड है वो स्प्लिट नहीं है। ये देखो, शेयर्ड है स्प्लिट हो रहा है, शेयर्ड है स्प्लिट हो रहा है, अनशेयर्ड स्प्लिट नहीं हुआ, शेयर्ड है स्प्लिट हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्वेश्चन है, व्हाई द शेयर्ड स्प्लिट एंड अनशेयर्ड डज नॉट स्प्लिट? इट इज बिकॉज ऑफ, अभी मैं बता रहा था, इट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ, मैं फिर बता दूं, इट इज बिकॉज ऑफ overlapping of angular wave function and mutual energy shared by the two states. So atom in either one of the shared states will have net electric dipole moment, but when state is unpaired, there can be no appreciable electric dipole moment and there only second order Stark effect. मैं फिर बता दूं, energy for electron in orbit depends on the sense of rotation in the orbit, which can be clockwise or anti-clockwise. So whenever mj changes sign, energy changes sign. ये तो जीमन इफेक्ट में था, but in Stark effect we say states with plus mj and minus mj have same energy.
In case of Stark effect, each pair of level mj and minus mj arising from given j have same energy in given electric field. This is due to reason that interaction of atom with electric field is purely electrostatic and atom becomes an induced dipole. Thus, for given set of n and l, electric dipole moment and energy of electron in an orbit depends on inclination of orbit with electric field. This energy does not depend on sense of rotation of electron in orbit, which can be clockwise or anti-clockwise. So states with plus mj and minus mj correspond to same inclination and hence have same energy in the given applied electric field. और ये भी बता दूँ, if j is an integer, then given level splits up into j plus 1 level, whereas for half integral value of j, level will split up into j plus half level. और फॉर एग्जाम्पल j की वैल्यू 2 है तो कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? j प्लस 1, यानी 3 कंपोनेंट्स. और 3 कंपोनेंट्स कौन से होंगे? j इक्वल टू 2 के लिए m सफिक्स j इक्वल टू प्लस माइनस 2 1, 0 2, प्लस माइनस 1. लेकिन अगर j की वैल्यू 3/2 है तो टोटल कंपोनेंट्स बनेंगे j प्लस हाफ, यानी 3/2 प्लस हाफ, यानी 2 कंपोनेंट्स. और वो कैसे? j इक्वल टू 3/2, तो mj की वैल्यू 3/2 से लेके माइनस 3/2. So state mj equal to 3/2 has the same energy as state mj equal to minus 3/2. State mj equal to plus half has the same energy as state mj equal to minus half. Please ध्यान दें, स्टार्क इफेक्ट में state mj equal to plus half has the same energy as the state mj equal to minus half. State mj equal to 3/2 has the same energy as state mj equal to minus 3/2. अब मैं क्लियर कर दूं बस. अब ये डायग्राम कैसे बनेगी? पहले ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. नंबर 1 देखिए यहाँ से आ रहा है ये. अब ये स्प्लिट हुआ, ये स्प्लिट नहीं हुआ. ये स्प्लिट क्यों हुआ? क्योंकि ये शेयरिंग है. और d 3/2 p 3/2, तो ये d 3/2 और ये p 3/2. और mj प्लस माइनस 3/2, क्योंकि j 3/2 है तो mj की वैल्यू प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस हाफ. क्योंकि j 3/2 है तो mj की वैल्यू 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2. लेकिन प्लस mj की प्लस 3/2 mj की माइनस 3/2 सेम है. mj की प्लस हाफ एंड mj की माइनस हाफ सेम एनर्जी है. ऐसे ये यहाँ पे भी j 3/2 है, लेकिन mj 3/2 से माइनस 3/2, 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2. तो प्लस 3/2 mj माइनस 3/2 सेम एनर्जी, प्लस 1/2 mj एंड माइनस 1/2 mj सेम एनर्जी. लेकिन ये हायर एल है, ये लोअर एल है. इसका हायर एल तो हायर एनर्जी दिखाएंगे, लोअर एल लोअर एनर्जी दिखाएंगे. इसी प्रकार से यहाँ फिर शेयरिंग है. ये 2p हाफ का, ये 2s हाफ का. एल हायर है, एल लोअर है, तो ये हायर दिखा दिया एनर्जी, ये लोअर दिखा दिया एनर्जी. लेकिन जे हाफ है तो mj प्लस हाफ, mj माइनस हाफ सेम एनर्जी. जे हाफ है तो mj प्लस हाफ माइनस हाफ सेम एनर्जी. यहाँ फिर 2p 3/2. यहाँ शेयरिंग या स्प्लिट नहीं हुआ क्योंकि अनपेयर्ड है. लेकिन j 3/2 है, j 3/2 है तो mj की वैल्यू 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2. लेकिन mj प्लस 3/2 माइनस 3/2 सेम एनर्जी, प्लस 1/2 माइनस 1/2 सेम एनर्जी. लेकिन आप कहोगे ये तो फिर mj प्लस हाफ माइनस हाफ है, और ये mj प्लस 3/2 माइनस 3/2 सेम क्यों है? दोनों mj 3/2 माइनस 3/2 तो सेम है, mj हाफ mj माइनस हाफ आपस में सेम है. लेकिन ये सारे आपस में सेम क्यों? क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग तो होनी नहीं है, क्योंकि ये अनपेयर्ड है. अभी तो बताया था इनमें ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन है. इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट आएगा तो स्प्लिटिंग होगी. इसमें तो सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग नहीं होगी. इसी प्रकार से इनमें भी स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट यहाँ पे आएगा, शेयरिंग. तो ये एल हायर है, ये लोअर है, ये अपर, ये लोअर. ये जे हाफ तो mj प्लस हाफ माइनस हाफ सेम एनर्जी. अब हम ये देखिए, ये ट्रांजिशन यहाँ से और इसकी ये लेवल 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, और ये ट्रांजिशन यहाँ पे टर्मिनेट है. तो ये ट्रांजिशन दोनों यहाँ पे टर्मिनेट है. फिर सेकंड देखिए, सेकंड वाली में ये ट्रांजिशन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. कहाँ पे टर्मिनेट हो रही थी ये ट्रांजिशन? 2 पे. ये देखो 2 पे हो रही है. लेकिन ये वाला लेवल तो यही था ना, तो अब ये बन गया.
ये लेवल ये इसमें में टूट गया तो ये ट्रांजिशंस आ गए। फिर 3 वाला तो एज इट इज़ चल ही रहा। फिर 4 देख लेते हैं। 4 में ये लेवल हिस्से आ रहे हैं। 4 वाला इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्रेक हुआ था 2 लेवल में, लेकिन ये ट्रांजिशन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो एक बार ये वाली ऊपर वाले पे गिरा दो, एक बार नीचे वाले पे, एक बार ऊपर वाले पे, एक बार नीचे वाले पे, फिर आ जाएगा ये वाली। इसमें तो ये वाली है, एक बार ये सारी लाइनें ऊपर वाले पे, एक बार ये सारी लाइनें नीचे वाले पे। तो इस तरीके से हम स्टार्क इफेक्ट मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच।